were you allowed to come back in the airport after the test was done कि या check in counter पे before you got the boarding pass तो उन्होंने कुछ check करा कि documents या questions पूछे तो क्या क्या उन्होंने check किया? तो उन्होंने जो हमारा चेक इन था उस वक्त हमारे कुछ डॉक्यूमेंट. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Love. I hope you guys are doing great and are well. In today's video, it will be very informative and will be very useful for anyone who is looking to come to Canada anytime soon. So in today's video, like I've mentioned in my previous video, I will be sharing the details and updates on direct flights from India to Canada with Air India. So in today's video, I won't just be sharing that. I also have a friend who actually came to Canada from a direct flight with Air India from India to Delhi to Toronto actually just last week, and today I was able to get in touch with him and record a video with him, and he has shared all of his experience, which includes his testing experience, COVID testing experience at Delhi airport and what he had to go through, how much time he had to wait, and his immigration experience in Delhi, his immigration experience in other city from where he came from, and his immigration experience in Toronto, Canada, and all the documents that he was asked. So this video will cover each and everything, and you guys will have a good idea by the end of today's video as to what you need to keep in mind if you're coming from a direct flight either with Air Canada or Air India. But he particularly traveled from Air India. So yes, Air India also has started their direct flights from Canada or India to Toronto, especially Delhi to Toronto, and currently the prices are actually really high, and the ticket pricing is around 1,50,000 per person. So keep that point in mind. So before I begin this video, before I connect with him, I would really request you guys to do subscribe to the channel. As you can see, only 10% of you are subscribed, and I would really appreciate if you hit the subscribe button, guys. The goal for this month is to reach 10,000 subscribers, and I know you guys can do it, as only about 10% of you are subscribed. So please do hit the subscribe button. It takes 2 seconds and it's free. Do leave a like to the video, as it just helps the video out from algorithm so that other people can watch it as well. And without wasting any time, let's just get into today's video and connect with my friend Swar. Okay, so I have Swar with me today. Thank you so much, Swar, for joining me for today's video. So like I mentioned, Swar came to Canada a few days ago, actually just like last week, and he came directly in a direct flight from Air India. And before I begin, Swar, would you like to introduce yourself to the audience? Yeah. तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम स्वर पंड्या है और मैं वडोदरा से हूँ, और मेरी फ्लाइट थी जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो ऑन 26 ऑफ सितंबर 7 AM to 8:15 AM वडोदरा से दिल्ली की थी, और फिर दिल्ली से ऑन 27 ऑफ सितंबर 3 AM to 8:45 AM दिल्ली टू टोरंटो की थी. And Swarto, like I have like a few questions prepared that I'm going to ask you like in a few order, like starting from your experience in India, in Vadodara, and then in Delhi, and then the cost and everything, and then in Toronto. So I'll also add timestamps below so everyone can like skip to that particular timestamp. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो I'll start with your experience in Vadodara. So first of all, I'll start with do you mind sharing how much you paid for your flight ticket? तो मैंने अपनी फ्लाइट टिकट के लिए 51,000 दिए थे, और एक्चुअली इतनी प्राइस कम थी, इसलिए कम थी क्योंकि जो मैंने फ्लाइट बुक की थी वो 19 अप्रैल को की थी, जो 13 जून को मैंने फ्लाइट का बुकिंग करवाया था, और वो 13 जून वाली फ्लाइट कैंसिल होके 1 अगस्त को हुई. फिर 1 अगस्त से ऑन 27 अगस्त हुई, फिर वो कैंसिल होके ऑन 24 सितंबर को हुई, फिर कैंसिल होके 25 सितंबर को हुई, और फिर वो जो फ्लाइट थी वो ऑन 26 सितंबर को कंफर्म हुई, जिस फ्लाइट में मैं इंडिया टू कनाडा आया. हाँ, तो आई थिंक इसलिए सिंस यू हैड एन ओल्ड बुकिंग तो वो उसी बुकिंग का प्राइस आपका इसलिए कम हो गया. बट आई थिंक राइट नाउ द प्राइसेस आर वेरी हाई, इवन बोथ विद एयर इंडिया एंड एयर कनाडा, अराउंड लाइक 1.5 लाख रुपीस, राइट? यस यस. Okay, तो you came on the 26th, तो we can start. तो आपने did you book it with an agent or like directly with the airlines? एक्चुअली मैंने अपनी जो टिकट थी उसको वडोदरा के अंदर जो एयर इंडिया की ऑफिस है वहां से ही बुक करवाई थी. Okay. और उन्होंने ही पूरा बुकिंग किया था अंडर 1 PNR. Under 1 PNR, तो what does that mean? Like what does that mean? अंडर 1 PNR मतलब जो मेरा वडोदरा से दिल्ली की फ्लाइट है और फिर दिल्ली से टोरंटो की है, दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, और उसका जो टाइमिंग होगा वो भी कनेक्टिंग होगा. और एक ही PNR के अंदर दोनों फ्लाइट होगी, दो अलग अलग PNR नहीं होंगे. और उसका फायदा ये है कि जो मुझे बैगेज का अलाउंस जो मिलेगा एज ए स्टूडेंट,
वो पूरा टोरंटो तक मिलेगा, और बैगेज अगर मैं वडोदरा से टोरंटो तक भेजना चाहता हूँ तो वो डायरेक्ट मैं भेज सकता हूँ। एंड आपकी व्हाट वाज योर बैगेज अलाउंस फॉर एयर इंडिया? मेरी बैगेज अलाउंस थी 3 into 23 kgs ऑफ बैग, देन एक 7 kg ऑफ कैबिन बैग और एक 5 kg ऑफ लैपटॉप। And I think हाँ आपको you got three bags because for Air India they have a policy for one extra bag for students, right? यस यस। Nice. Okay, so we can start. So now we can start by sharing. So how was your experience at Vadodara Airport when you arrived, and what documents did they ask, or what questions did they ask, and if you had to bring a PCR test from your Vadodara city to Delhi, and then we can go on, and then you can start telling how your experience was in Delhi. हाँ, तो वडोदरा में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि आपकी जो फ्लाइट है वडोदरा से दिल्ली की, उसके लिए कोविड टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए उसको करवा लिया था। Okay. लेकिन फिर भी उसकी जरूरत कुछ नहीं थी। उन्होंने किसी भी पैसेंजर से उसका कोविड टेस्ट नहीं पूछा था। तो वडोदरा से दिल्ली की जो मेरी फ्लाइट थी वो स्मूथ रही। Nice. फिर जब दिल्ली में हम लोग पहुंचे, तब दिल्ली में हम लोगों ने पहले कोविड टेस्ट के लिए हम लोग बाहर गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसकी सिस्टम क्या है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वहां से एग्जिट है। फर्स्ट फ्लोर पे जीन स्ट्रिंग्स लेबोरेटरी है जहाँ पर हमें अपना कोविड टेस्ट करवाना होता है, और सेकेंड फ्लोर से हम लोग अंदर टर्मिनल 3 पर जाते हैं। जो एयरपोर्ट है उसके अंदर जाने के लिए आपको सेकेंड फ्लोर से जाना पड़ता है। तो ये सिस्टम है दिल्ली एयरपोर्ट का, क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें पता नहीं होता है, और मैं भी था तो मुझे भी नहीं पता था। और दिल्ली में क्या होता है कि कोई इंक्वायरी वाला नहीं मिलता आपको, तो सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछते रहते हैं और वो लोग भी जवाब नहीं देते। तो अगर मैं आपको ये टिप दे दूँ तो आपको ये थोड़ी सी आसानी होगी। हाँ एग्जैक्टली। एंड आपने जो दिल्ली आप कितने बजे लैंड हुए थे दिल्ली में? तो मैं दिल्ली में लैंड हुआ था ऑन 26 सितंबर 8:15 AM को। एंड आपकी फ्लाइट नेक्स्ट डे 3 AM की थी? हाँ। एंड तो आपने जो PCR टेस्टिंग कराया, डिड यू डू द रैपिड PCR टेस्टिंग और द रेगुलर RT-PCR? एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने लव के जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखकर ही उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक थी वहीं से मैंने अपनी टेस्ट बुक करवाया था। और मैंने करवाया था RT-PCR जिसकी फीस थी 500 रुपए। और मैंने वही टेस्ट, आई थिंक 90% ऑफ जितने भी पैसेंजर्स थे हमारे साथ उन्होंने RT-PCR ही बुक करवाया था, क्योंकि RT-PCR है उसकी जो रिपोर्ट है वो 5 आवर्स में आ जाती है। Okay. और जो रैपिड PCR है उसकी 1 आवर में आ जाती है। तो 4 घंटे सिर्फ जो 4 ही घंटे का सिर्फ डिफरेंस है। तो RT-PCR जो है वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपको वही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Yes, I think because rapid PCR की जो cost है, I think that's 3,900 rupees, so like 5 times more. Actually 8 times more. So it's better to get the normal RT-PCR and come like 4 hours early and save money on that. So did you make the payment online for when you were booking the appointment, और कि आपको एयरपोर्ट पे पे करना पड़ा उसका? नहीं, मैंने उसकी बुकिंग ऑनलाइन ही करवाई थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रोसेस मेरा जो था वो कोविड का प्रोसेस जो लाइन का वो स्मूथ हुआ, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी उन लोगों को एक फॉर्म दिया जाता था और उस फॉर्म को उन्हें फिल करना पड़ता था और फिर उसकी पेमेंट करनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा डिले हो जाता था और कुछ लोग उनसे आगे चले जाते थे। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करवा दो, तो आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो उसके बाद आप आए, दिल्ली लैंड हुए एंड आपने अपना बैगेज लिया, चेक इन बैग्स वगैरह। तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट एग्जिट करना पड़ा। यू नीडेड टू एग्जिट द एयरपोर्ट टू गो टू द जेनेस ट्रिसिक लैब, राइट? तो इसमें एक चीज़ और है कि आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट अ ट्वीट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट विच आई वॉन्ट टू शेयर विद एवरीवन। तो नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ ड्राइव थ्रू टेस्ट इन दिल्ली। तो आई थिंक वो आई हैव द ट्वीट, आई कैन शो यू लाइक अ फोटो नेक्स्ट टू द वीडियो राइट नाउ। तो एज यू कैन सी इट सेज कि passengers traveling from Air Canada can opt for drive-through RT-PCR test service located at level 2 multi-level car parking at terminal 3। तो this is how it will look like। तो वो पार्किंग में उन्होंने बनाई हुई है वो RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटी। तो मतलब आप कार के अंदर ही करवा सकते हो उसको और फिर पार्किंग में वेट कर सकते हो। तो उसके बाद आप बाहर गए तो आपकी कहाँ, तो वेयर वॉज योर टेस्टिंग अगेन, लाइक वो कहाँ पे थी लैब लोकेटेड? हाँ, तो जो लैब है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और हम लोग पहले लेफ्ट साइड पे चले गए थे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर RT-PCR लिखा हुआ होता है, फिर सामने की तरफ रैपिड PCR लिखा हुआ होता है।
लेकिन हाँ, जो कनाडा के लिए, जो टोरंटो के लिए जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई है राइट साइड पर, पार्किंग लॉट के ऊपर और पार्किंग एरिया में, मेट्रो स्टेशन के ऊपर। तो हमें वहीं पर जाना है और उसी फैसिलिटी से हमें कोविड का टेस्ट करवाना है। Nice. And were you allowed to come back in the airport after the test was done? कि you had to wait नो, outside? एक्चुअली हम लोगों ने जब टेस्ट करवा लिया तो हम लोग अंदर गए वहां पर, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने हमें मना कर दिया कि आप लोग तभी अंदर जा सकते हो जस्ट 7 आवर्स बिफोर योर डायरेक्ट फ्लाइट। Okay. तो हम लोग तो वहां पर शॉक हो गए कि अब हम लोग बाहर तो आ गए हैं लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते। तो हमें जितना भी 18 आवर्स का हमारा ले ओवर था वो हमें बाहर ही काटना पड़ा। तो इट वॉज रियली रियली लाइक, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी शौक की बात थी। तो आपने बाहर क्या किया? डू यू हैव एनी टिप्स फॉर एनीवन हु इज कमिंग दिस अर्ली कि वो क्या कर सकता है बाहर, मतलब कुछ स्नैक्स अपने साथ लेकर हाँ, आए? तो मैं सबको यही टिप देना चाहूंगा कि अगर आपका 18 आवर्स का या फिर उससे थोड़ा सा कम ले हो रहा है तो आप दिल्ली के एयरपोर्ट के पास ही कोई होटल हो तो वही बुक कर लो। क्योंकि और अगर आप वो नहीं बुक करना चाहते तो गेट नंबर 8 है सेकंड फ्लोर पर, उसके बाजू में ही जस्ट कॉर्नर में एक लॉन्च फैसिलिटी है, वहां पर सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और बैठकर अपना टाइम गुजार सकते हैं। और वहां पर आपको चार्जिंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, लेकिन वहां पर आप 12 आवर्स के लिए बैठना वो भी एक हार्ड काम है। तो इससे अच्छा होगा कि आप होटल बुक करवा दो, वहां पर आप आराम कर सकते हो और आपका जब रिपोर्ट आए आपका 7 आवर्स पहले आप एयरपोर्ट पर आ जाओ और आपका जो भी चेक इन है वो सब आप लोग करवा दो। तो how long did it take for you to get your result for the PCR test? आरटीपीसीआर का मेरा जो रिजल्ट था वो 5 आवर्स के बाद आ गया था। Okay. या एंड तो हाउ डिड, तो आपको नोटिफिकेशन आई थी कि ईमेल मैसेज, या कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया? हाँ, तो जो टेस्ट था उसके लिए हम लोगों ने जो नंबर दिया होता है अपना मोबाइल नंबर, उस पर मैसेज भी आता है और ईमेल एड्रेस दिया होता है उस पर मेल भी आता है। तो दोनों से आपको मैसेज आएगा और जो ईमेल है उस पर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। ओके। एंड तो फिर आपको वहाँ ऑफिस जाके कलेक्ट करनी थी हार्ड कॉपी, एंड देन यू हैड टू गो टू द एयरपोर्ट? हाँ, जो हार्ड कॉपी है वो आपको जब आप एंटर करोगे गेट नंबर 8 से, तो गेट नंबर 8 के जस्ट सामने ही आपको अपनी हार्ड कॉपी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा ओके। उस हार्ड कॉपी के लिए। तो उसके बाद फिर आपने वो हार्ड कॉपी कलेक्ट करी, एंड देन यू केम इन द एयरपोर्ट टू चेक इन विद एयर इंडिया। तो हाँ, चेक इन काउंटर पे बिफोर यू गॉट द बोर्डिंग पास, तो उन्होंने कुछ चेक करा कि डॉक्यूमेंट्स या क्वेश्चंस पूछे, तो क्या क्या उन्होंने चेक किया? तो उन्होंने जो हमारा चेक इन था उस वक्त हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। पहला उन्होंने मेरी स्टडी परमिट मांगी, ओके। फिर हमसे कोविड का जो हमारा रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट मांगा, फिर कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चेक किया। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आपका शेड्यूल बताओ, तो हम लोगों ने शेड्यूल बताया और लास्ट में उन्होंने अराइव कैन की जो हमारी रिसिप्ट थी वो चेक की। तो जो जैसे आपने कहा कि स्टडी परमिट, तो बट डिड यू ऑलरेडी हैव अ स्टडी परमिट, कि आपने फिर क्या दिखाया उस चीज़ में, कि आप तो एज ए न्यू स्टूडेंट जा रहे हो, राइट? तो स्टडी परमिट हाँ, कनाडा में इशू होता है? तो आपका जो ऑफर लेटर है वो आप बता सकते हो कि हमारे पास जो ऑफर लेटर है तो वो चल जाएगा। एंड वो जो हमें मिलता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम हाँ, लेटर ऑफ आईआरसीसी, या राइट? एंड जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स उन्होंने मतलब वहाँ पे मांगी प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन बोर्डिंग पे, कि हाँ, तो इज इट कम? जब बोर्डिंग के वक्त नहीं मांगी उन्होंने, एक्चुअली चेक इन के वक्त ही सब कुछ मांगा था हमसे। ओके। ये सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, और इमिग्रेशन के वक्त हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। बट इज इट कंपल्सरी टू बी वैक्सीनेटेड टू टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट विद एयर इंडिया? नो, नो, इट्स राइट? नॉट कंपलसरी। एक्चुअली हमारे साथ कुछ कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई थी ऐसे भी पैसेंजर्स थे। ओके। तो ये हमारे लिए नहीं है। Also, हाँ, तो आई थिंक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू ट्रैवल टू कनाडा इन नो, डायरेक्ट फ्लाइट even if you're not vaccinated or with Covaxin, right? या So and then you took a direct flight to Canada from Air India. I think it was around 14 hours flight time. इट वाज 15 आवर्स एंड 45 मिनट्स। Oh wow. And was there any issue in the flight, or was it smooth all the way? नहीं नहीं, फ्लाइट प्योर स्मूथ थी, बहुत स्मूथ थी, और जितना भी स्टाफ था एयर इंडिया का वो बहुत ही कंट्रीब्यूटिव स्टाफ था। Nice. तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। And then आप लैंड कनाडा में लैंड हुए, तो हाउ वाज योर, तो हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में
क्योंकि मेन स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू नो कि क्या होता है टोरंटो में, क्या एक्सपीरियंस इस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है. तो व्हेन यू लैंडेड इन टोरंटो, तो यू कैन टेल मी योर इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की ऑफिसर ने क्या क्वेश्चंस पूछे एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स डिड दे आस्क टू यू स्पेसिफिकली. तो एक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट होगी तो आई कैन ऑलवेज शो देम ऑन द साइड एज वेल. एंड कितना टाइम लगा एंड क्या उन्होंने मांगा आपसे, क्योंकि सिंस यू वर वैक्सीनेटेड तो यू आल्सो गॉट क्वारंटीन एग्जेम्पशन, राइट? तो यस। उसके लिए क्या उन्होंने मांगा, तो यू कैन स्टार्ट बाय टेलिंग मी दैट. हाँ, तो जब हम लोग टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंचे, हम्म. तो पहले से उन्होंने हमें जो हमारी जो फ्लाइट थी उसके अंदर एक एक सर्टिफिकेट दिया था, जिसके अंदर हमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी थी कि आप कितने टाइम तक कनाडा में रहने वाले हो, आपका नाम क्या है एज पर पासपोर्ट, फिर आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, हमें सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी थी. फिर हम लोग जब वहां पर पहुंचे, तब एक मशीन थी. उस मशीन में हमें जितने भी अराइव कैन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही सेम क्वेश्चंस उस मशीन ने पूछे जिसके अंदर हमें आंसर देना था. हम्म. फिर उस मशीन ने हमारा पिक्चर खींचा, फोटो खींचा, और उसने एक मशीन में से ही एक रिसिप्ट निकली हमारी. वो रिसिप्ट लेकर हम लोग लाइन में लगे, और लाइन में हम लोगों ने, फिर लाइन जब खत्म हुई तब हमारा इमिग्रेशन शुरू हुआ. उस इमिग्रेशन में उन्होंने हमारा पासपोर्ट मांगा, और पासपोर्ट हमारा मांगते ही उनके पास हमारी सारी डिटेल्स थी जो हम लोगों ने अराइव कैन में भरी थी. तो बस उन्होंने हमारा फेस चेक किया, और फिर जो पासपोर्ट था उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर लगा दिया. तो वो ग्रीन स्टिकर, you already sent me a photo of the green sticker, so I'll show them on the side. This is how it looks like. And I think वो उन्हीं को लगती है जो fully vaccinated है and जिनको quarantine exemption मिल चुकी होती है, right? जी. तो या. आपको did you still have to like plan a quarantine plan before you came, और कि उसकी हाँ, जरूरत नहीं पड़ी? तो मैं एक्चुअली इंडिया से क्वारंटाइन प्लान भी लेकर आया था. फिर मेरे पास बायोमेट्रिक लेटर भी था और एनरोलमेंट लेटर भी था, लेकिन मुझे इमिग्रेशन में किसी भी जगह पर वो मांगा नहीं गया. तो आपने क्वारंटीन प्लान में क्या प्लान किया था, मतलब किसी की बीएनबी या? तो नहीं, मैंने क्वारंटाइन प्लान में बस मैंने वही मेंशन किया कि मैं अपना जो अपार्टमेंट है वहीं पर रहने वाला हूँ. Okay. एक अलग रूम में, और मेरा वॉशरूम जो है वो भी मेरा सेपरेट ही रहेगा. Nice. तो लेकिन उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ी. तो that तो हाँ, ओके. तो व्हाट क्वेश्चंस डिड द ऑफिसर आस्क, वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा आपसे? तो वहां पर जो इमिग्रेशन थी वो इतना स्मूथ था कि जैसे हमें लगा ही नहीं कि ये इमिग्रेशन है. वो लोग मजाक कर रहे थे एक्चुअली. और उन्होंने बस मजाक मजाक में हमसे पूछ लिया कि आप कौन सी कॉलेज में हो, और आपका कोर्स कितना है, कौन सा है कोर्स. तो हम लोगों ने उसका आंसर दिया, और उन्होंने बस हमें स्टडी परमिट दे दी. नाइस. तो इतना कोई वहाँ पे वो नहीं है, वो आई थिंक स्टूडेंट्स आर वैसे ही स्केर्ड हो जाते हैं कि क्या होगा वहाँ जाके, अफसर क्या पूछते हैं. आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, एवरीवन हैज सेड कि इट हैज़ बीन लाइक रियली स्मूथ एंड इजी इन कनाडा whenever they हाँ, arrived in Toronto. The immigration has been really nice. As long as you're confident and have all the documents, there shouldn't be any problem, right? राइट. And उसके बाद तो आपको how long, कितनी देर लगी at the airport बाहर निकलने में? मुझे बाहर निकलने में अराउंड 1 to 1.5 आवर लग गए, क्योंकि वहां पर जो लाइन थी वो बहुत लंबी थी, और जो इमिग्रेशन था उसमें भी लोगों को बैठकर बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता था. तो उसी वजह से हमें थोड़ा सा 1.5 घंटे जैसा टाइम लग गया. Okay, okay. But did you see anyone at the airport, any students struggling in immigration, या किसी को hard time दे रहे हो वहाँ पे? नो वन. सभी स्टूडेंट्स को और मैं ज्यादा तो ये भी बताना चाहता हूँ कि वो लोग एक एक स्टूडेंट को नहीं बुलाते. इमिग्रेशन में दो स्टूडेंट बुलाते, एक साथ बुलाते, और फिर स्टूडेंट्स को बस दो क्वेश्चन पूछकर उन्हें स्टडी परमिट दे देते हैं. नाइस. क्योंकि हमारे टाइम व्हेन आई केम तो इंडिविजुअली बुला रहे थे, या तो इसलिए आप जल्दी कर रहे हो ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे. हाँ. बट इट्स नाइस कि दो बच्चे बुला के इजीली दे आर गिविंग अवे द स्टडी परमिट एंड लेटिंग देम गो. या. Nice. I think, yeah, that was all for the direct flight information, and you pretty much gave all the information that we all need to know, especially about the PCR testing at Delhi airport and कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या experience था, and how it was advantageous for you to get the booking done in advance. So I've already made a video like you mentioned, so you guys can check that out. The link will be up here. And before I finish up the video, do you have Swar any tips for all the students who will be coming to Canada anytime soon? कि कोई tips उनके लिए direct flight से जा रहे हैं कि कैसे वो टाइम सेव कर सके या कुछ भी? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है. वहाँ पर जो स्टाफ है वो भी सारा कंट्रीब्यूटिव है, लेकिन जो एक दिक्कत है
वो है वेटिंग टाइम, क्योंकि आपको हर जगह पर वेट करना पड़ेगा, चाहे वो कोरोना की जो कोविड टेस्ट है उसकी लाइन हो, चाहे आप अंदर जाना चाहते हो एयरपोर्ट के उसकी लाइन हो, चाहे उसकी हार्ड कॉपी लेनी है उसकी टाइम हो, चाहे चेक इन की टाइम हो, चाहे इमिग्रेशन की टाइम हो, आपको हर एक टाइम वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 1 आवर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक पानी की बोतल रखें और थोड़ा सा खाना रखें, कि आप वेटिंग टाइम से अगर आप वेटिंग में हो, क्यू में हो, तो आप वहां पर ही उसको ले सको और आपको कहीं पर बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरी मेरी टिप ये रहेगी कि जो हमारा कोविड का जो लाइन थी, जब हम लोग टेस्ट करवाने के लिए गए थे, तो उस लाइन में बहुत सारे लोग थे और वो लोग क्या करते थे कि सीनियर सिटीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते थे। Okay. तो सीनियर सिटीजन है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो कुछ जो यंगस्टर्स है वो सीनियर सिटीजन के साथ ही जाकर पहले अपना टेस्ट करवा लेते थे। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक ऑप्शन है कि अगर आप कोई सीनियर सिटीजन के साथ जा रहे हो तो आपके पास ये भी एक एडवांटेज है कि आप वो 2 घंटे की लाइन को स्किप कर सकते हो। बट लेकिन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट होगी तो तभी आपको वेट करना पड़ा था लाइन में? हाँ, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं है, अगर आपने रैपिड पीसीआर करवाया या आरटी पीसीआर करवाया, आपने कुछ भी करवाया है, सबकी सिर्फ एक ही लाइन है। ओके। अगर आप वरना आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो या फिर आप 3900 खर्च कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपको एक ही लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। आपने ऑनलाइन करवाया है या फिर फिजिकल करवाया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन है सबकी। ओके। एंड और मेरी अनदर टिप है कि जब हम लोगों ने गेट नंबर 8 से हम लोग अंदर गए और जब हम लोगों ने उसकी हार्ड कॉपी ली, तो उसके ऊपर ना ही स्टैम्प था, ना ही स्टिकर था, ना ही कोई सिग्नेचर थी, बस जो सॉफ्ट कॉपी हमें पहले ही मिल चुकी थी अपने मेल पर, उसी की हार्ड कॉपी थी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 2 घंटे लाइन में लग के उसकी हार्ड कॉपी ही लो। तो इससे अच्छा है कि जितने भी एयर इंडिया के पैसेंजर्स है, उन्हें शायद नहीं पता कि गेट नंबर 8 से एंटर करते ही राइट साइड पर एयर इंडिया की ऑफिस है, टिकट ऑफिस। वहां पर वो लोग, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पर्सनल नहीं है, तो वो लोग आपकी फ्री में कॉपी कर देंगे। तो आप एक बार पूछ लो कि ये जो हार्ड कॉपी आप दे रहे हो, उसकी उसकी बजाय अगर मैं अपनी जो सॉफ्ट कॉपी है उसी की अगर प्रिंट करवा लो तो क्या वो चलेगा? तो अगर वो लोग एग्री करते हैं तो आप वहीं से एयर इंडिया की ऑफिस से ही आप उसकी प्रिंट करवा लो, तो आपका जो 2 आवर्स का जो वेटिंग टाइम है वो आपका बच जाएगा। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी मेरी टिप है, वो ये है कि आप लाइन को कभी स्किप मत करो और जितनी भी लाइन है उसके अंदर लाइन में ही रहो, क्योंकि कुछ लोग थे कि जो लाइन को स्किप कर रहे थे, तो जो ऑफिसर है वो उन लोगों को पीछे भेज देते थे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लाइन को कभी भी स्किप मत करो, भले ही आपको वेटिंग टाइम ज्यादा हो। एंड जो आपने प्रिंट आउट वाला पॉइंट मेंशन किया, तो एयर इंडिया ऑफिस, टिकट ऑफिस, वो वर दे चार्जिंग एनीथिंग फॉर द प्रिंट आउट्स और वाज इट फ्री? नो, इट्स फ्री फॉर ऑल द पैसेंजर्स ऑफ एयर इंडिया। तो आप अगर एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो तो वो लोग आपको फ्री में प्रिंट आउट करके देंगे। Nice. This is a very good tip for anyone who has a document missing, so they can get that print out with Air India office. Nice, awesome, Swar. Thank you so much for sharing all this information, and I do hope everyone who's watching this video finds this useful and helpful for all of those who are coming to Canada anytime soon. If you guys still have any more questions, you guys can drop off in the comments. I will also share Swar's Instagram, if he's okay, in the description, so you guys can directly hit him up for any questions. You guys can hit me up for any questions, and I would be more than happy to help. And once again, thank you so much for joining, Swar, and that was all for today's video, guys. I hope you find this video useful. Do leave a like if you liked it, and do subscribe to the channel for more, and I will see you guys in the next one. Take care.